ज़माने भर के तबीबों ने बात है मानी, ज़माने भर के तबीबों ने बात है मानी, हर एक इलाज पर गालिब है तिब्बे यूनानी. Thank you, Uzma. Moving forward with the program, every great institution thrives in academic brilliance, research and creativity. Our annual magazine, Parvaz, is a testimony to the dedication, talent and hard work of our principal, faculty member and students. Bringing this magazine to life has been no small feat. It is the result of months of dedication, late-night brainstorming sessions, and meticulous editing. I extend my heartfelt gratitude to our respected principal and the editorial team, the faculty advisors, and every student who has contributed their time, effort, and creativity to make this magazine a reality. Your hard work deserves applause. A special word of appreciation to our respected principal, Dr. Rashid Qazi sir, for unwavering support and encouragement in fostering a culture of learning and creativity. With great pride and excitement, all the teachers please join us on the dais. Thank you so much, everyone. इज़्ज़त बढ़ाई आपने होकर शरीक बज़्म, इज़्ज़त बढ़ाई आपने होकर शरीक बज़्म, बंदा नवाज आपकी शिरकत का शुक्रिया. The moment has arrived to honor our guest with this special memento as a token of our appreciation and gratitude. Your presence and contributions have truly enriched this event, and we are privileged to have you with us today. This souvenir is a small gesture to express our heartfelt thanks and to commemorate this wonderful occasion. This memento is a symbol of our admiration and reminder of this beautiful occasion. We are honored for having us today our guest of honor, Dr. Raman Ghungralekar sir. Sir is the esteemed director of Directorate of Ayush, Government of Maharashtra. With qualification of BMS and MD in Kaya Chikitsa, that is medicine, he has dedicated over 3 decades to the advancement of Ayurvedic medicine. Prior to his current role, he served as a professor in the Department of Kaya Chikitsa at R.A. Poddar Ayurvedic Medical College and M.A. Poddar Hospital in Mumbai. His expertise spans teaching, research and development, project proposal writing, and examination processes. As a director, he oversees the integration and regulation of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy, that is Ayush, in the state, ensuring the promotion and standardization of these traditional systems of medicines. He is also actively involved in addressing issues related to fraudulent practices in alternative medicines, advocating for patient awareness and safety. I request our Honorable President of Anjuman Islam, Padma Shri Dr. Zahir I. Qazi sir, to please present memento as a token of appreciation to Honorable Director Dr. Raman Ghungralekar sir. I request all the dignitaries to please join in.
मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा। मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा। मुझे मकाम न दो, मैं खुद मकाम ले लूँगा। It would be a privilege to hear from you, sir. I humbly invite you to share your insights and words of wisdom with us. Our next guest of honor was Honorable Commissioner Mr. Rajiv Nivatkar, sir. Sir is an Indian Administrative Service Officer of the 2010 Maharashtra cadre. He currently serves as a Commissioner of Medical Education in Mumbai and Maharashtra. Prior to this role, he held the position of Collector and District Magistrate of Greater Mumbai. I request our Honorable President of Anjuman Islam, Padma Shri Dr. Zahir I Qazi sir, to please present memento as a token of appreciation to Mr. Rajiv Nivatkar sir, and I request Dr. Raman Gungrarikal sir to please receive on behalf of Mr. Rajiv Nivatkar sir. Our today's chief guest was Honorable Minister Mr. Hassan Mushrif sir. Sir is a prominent politician affiliated with National Congress Party NCP and has been a key figure in Maharashtra politics. Since July 14, 2023, he has served as a Minister of Medical Education in the government of Maharashtra. I request Honorable President of Anjuman Islam, Dr. Zahir Qazi sir, to please present memento to Dr. Mr. Hassan Mushrif sir, and I request Dr. Raman Gungrarikal sir to please receive on behalf of Mr. Hassan sir. Now I take this opportunity to invite Dr. Raman Gungrarikal sir to share his golden thoughts to enlighten with us. आज के यूनानी डे के अवसर पर और जो MHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जो 5 टॉपर ये आपके कॉलेज के स्टूडेंट आए हैं उनका स्वागत करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री महोदय हसन मुशर्रफ जी सर आने वाले थे, मगर उनको यार सीरियस मीटिंग हो रही थी और मीटिंग की वजह से उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप जाके वो कार्यक्रम में अटेंड करो। तो उनके निर्देश से और आपके प्यार से इन्विटेशन की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। जब मैं 82 में स्टूडेंट था तो आपने आयुष की स्थिति ये थी कि आपकी ITI या डिप्लोमा वो कोर्स के बराबर थी, और 81-82 में चीफ मिनिस्टर अंतुले साहब थे, और जब हमने आंदोलन किया था, जब वो आंदोलन के रिस्पॉन्स से अंतुले साहब ने मॉडर्न इक्वल स्टेटस 82 में दिया, और इसके लिए आगे उन्होंने दिया, इस वजह से अपन ये अभी मॉडर्न के इक्वल स्टेटस पे है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंतुले साहब का। और दूसरी बार कि लगभग मैं मुशर्रफ साहब के पहले 1-2 महीने पहले डायरेक्टर बना, फिर बाद में मुशर्रफ साहब एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, मेडिकल एजुकेशन।
और लगभग 1.5 साल हो गया, 1-2 महीने ज़्यादा हो गए, और 1.5 साल में आयुष मिनिस्टर के लिए कभी 100 करोड़ या 50 करोड़ भी नहीं मिला था। जब से 1.5 साल में आयुष को 2,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। आयुष बोलने के लिए आयुष डिपार्टमेंट था, मगर गवर्नमेंट के इसमें आयुष खाली आयुर्वेद कॉलेज थे और कोई कॉलेज नहीं था। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष नाम था, मगर मुशर्रफ साहब के वजह से ही होम्योपैथी, यूनानी, योग और सिद्ध महाराष्ट्र में नहीं है, मगर ये पूरा आयुष फैकल्टी पूरा करने का श्रेय जो है अपने मंत्री महोदय हसन मुशर्रफ जी जाता है। गवर्नमेंट का यूनानी फर्स्ट कॉलेज अपने महाराष्ट्र में होने जा रहा है, अभी रायगढ़ जिले डिस्ट्रिक्ट में। अभी मसरा में होने वाला था, मगर वो गांव छोटा होने की वजह से वो ज़रा बड़े गांव में लेने का ऐसा सुझाव है, तो एक 8-15 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद यूनानी कॉलेज एक वह फल तो 1 साल में वो चालू किया जाएगा। जो यूनानी या आयुष अल्टरनेटिव मेडिसिन है कि WHO के डायरेक्शन है, अगर WHO के कोई एड्स या कोई चाहिए तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में मिनिमम 10% वित्तीय तरतूद करनी चाहिए, ऐसे उनके डायरेक्शन है। इसलिए आयुष मिनिस्टर में इतना पैसा है अभी अपने कि ये खर्चा करने के लिए अभी अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मगर अपने के लिए लेने के लिए ये नहीं था। तो ये साल में अभी सेंट्रल आयुष मिनिस्टर से 1600 करोड़ अपन ये साल में लाने वाले हैं, और अपने सेंट्रल मिनिस्टर ने इसका आश्वासन दिया है कि 1600 करोड़ देंगे। और अभी दूसरा जो यूनानी के अपने 3 एडेड कॉलेज है, ये तीनों एडेड कॉलेज में स्किल लैब के लिए 12-12 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन हुए हैं अभी स्किल लैब के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर स्किल लैब हर कॉलेज में, तो एडेड कॉलेज में हो जाएगा, गवर्नमेंट के तो कॉलेज में तो होने ही वाला है। और मेरी तरफ से जितना हो सके, इतने सालों से आयुष के जो आयुर्वेद है, यूनानी है, तो होम्योपैथी को तो इंडियन मेडिसिन नहीं बोल सकते, वो तो बाहर का है, मगर ये सिद्ध, यूनानी, आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, ये तो निश्चित ही इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और ये सिस्टम डेवलप करना और हर मेडिसिनल सिस्टम में कुछ ना कुछ तो भी अच्छी बात है। अल्टरनेटिव मेडिसिन एलोपैथी में जो नहीं होता है उससे कुछ तो भी पोटेंशियल है, इसीलिए तो वो 200-300 साल तक वो चलते रहता है। तो ये मॉडर्न के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये रिसर्च होना चाहिए, इंटीग्रेटेड रिसर्च होना चाहिए, इसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। और मॉडर्न के नॉलेज इसमें इसका अपना जो नॉलेज है यूनानी और आयुर्वेद का, मॉडर्न के साइंस के इस पर प्रूव करना चाहिए, तो ही मॉडर्न का जो दुनिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अपने ही लैंग्वेज में, अपने ही सिद्धांत में अगर ये प्रेजेंट किए तो मॉडर्न की वाले ये अब ये जो वर्ल्ड है वो नहीं मानने वाला है। तो ये परीक्षा भी चालू है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में भी, और अपन महाराष्ट्र में भी अभी एक ऐसा सोच रहे हैं अभी कि हर सिस्टम का एक मॉडल इंस्टीट्यूट हो कि जो पूरी सुविधा हो, आयुर्वेद का एक, यूनानी का एक, योगा का एक, होम्योपैथी का एक और मॉडर्न एलोपैथी का एक, ऐसा एक्सटर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्थापन करने का अभी चल रहा है। अभी आयुष पॉलिसी में भी अभी निकल लाने वाले हैं अभी अगले 2 महीने कैबिनेट में। तो वो आयुष पॉलिसी में एक्सलेंट डिपार्टमेंट तो इंस्टीट्यूट हम करने जा रहे हैं। जितना हो सके हम आयुष के लिए प्रोग्रेस करने के लिए, उसके डेवलपमेंट करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए हम हरदम कोशिश करते रहेंगे। ये कार्यक्रम के लिए मुझे इनवाइट किए
पद्मश्री काजी सर जी, मुश्ताक अंतुले सर जी, शेख अब्दुल्ला सर जी, मोजिज़ मोइज वल्ला सर जी और प्रिंसिपल हमारे दोस्त काजी साहब, इसलिए मुझे इनवाइट किए और मेरा सत्कार किए, मुझे इतना मान सम्मान दिए, इसलिए मैं आपका आभार मान के मैं मेरे 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।